Hello students, in this video today we are going to revise the nervous tissue. Okay, we are going to see the nervous tissue in this video. So nervous tissue is made up of neurons and neuroglia. इसमें दो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स रहते हैं, एक होता है न्यूरॉन्स, दूसरे होते हैं न्यूरोग्लिया. ये पक्का पक्का आपको याद रखना है फॉर द एमसीक्यू. नाउ न्यूरॉन जो है ये रहेंगे न्यूरॉन्स and ये रहेंगे neuroglia cells. All right, this nucleus is of the neuron. These are the neuroglia cells. इसमें intercellular matrix absent रहेगा. So nervous tissue में very important MCQ. It will not have intercellular matrix. It will be surrounded neurons. It will be having neurons and neuroglial cells. So we are going to see in detail about the neurons and we are going to see about the neuroglial cells. So this diagram is from the NCERT, the neurons and the neuroglial ones. Let us see the structure of the neuron now. All right, let us begin. एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में ये सेल बॉडी है. ओके, दिस इज द सेल बॉडी और द साइटोन. ये सेल बॉडी है. सो एक सेल के न्यूक्लियस में, सेल में क्या क्या रहते हैं? न्यूक्लियस रहता है, बाकी सारे ऑर्गेनल्स जो रहते हैं वो सब रहेंगे एक न्यूरॉन में, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म छोड़ के, जिसकी वजह से वो रीजनरेशन नहीं कर पाएगा. दैट इज द सेंट्रियोसोम्स और द सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स एब्सेंट रहेंगे, अदरवाइज द गोल्गी apparatus is present, the mitochondria is present, nucleus is present, nucleolus is present, endoplasmic reticulum is present. Everything will be present except the centrioles, because of which it will not regenerate, it cannot divide. Okay, and ये जो सेल बॉडी है ये खुलेगी बहुत जगहों पर. It will be open at many places. All right, so these short branches which are opening from the cell body, इनको बोलते हैं dendrites. And one long structure which is coming down, which is coming here, is the axon. ठीक है, सेल में आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे स्पेशल ग्रैन्यूल्स रहेंगे which are called Nissls granules. ये Nissls granules, they are part of ER. They are made up of RNA, made up of endoplasmic reticulum. ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे न्यूरॉन्स के लिए. All right, so one long structure will be axon. Various branches of the cell from here will be dendrites. These will be short, these will be branched. Axon will be long. ये point जहाँ से axon चालू होगा is called axon hillock. Axon hillock. It's the point from where the axon starts. And from this point below, Nissls granules absent रहेंगे. So अगर ये सेल का साइटोप्लाज्म है तो यहाँ पे Nissls granules present रहेंगे, यहाँ से Nissls granules absent रहेंगे. Very important MCQ again. तो ये एक्सॉन है. एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है वो एक्सोलेमा होती है एंड एक्सॉन के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक्सोप्लाज्म होता है. यहाँ के प्रोटोप्लाज्म को बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म, यहाँ के प्रोटोप्लाज्म को बोलते हैं एक्सोप्लाज्म. दिस सेल बॉडी से जो छोटे छोटे ब्रांचेस हैं वो होते हैं डेंड्राइट. दिस लॉन्ग इज द एक्सॉन. ओके, यहाँ से एक्सॉन हिलॉक स्टार्ट होगा, यहाँ से Nissls बॉडीज नहीं रहेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मैं आपको बता रही हूँ, डायग्राम बना के उसको नोट करो. इसमें बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे, सेंट्रियोल्स एब्सेंट रहेंगे. बिकॉज ऑफ दैट दे कैन नॉट रीजनरेट, दे कैन नॉट डिवाइड माइटोटिकली. ऑल राइट, एंड Nissls granules प्रेजेंट रहेंगे. दीज आर नेम्ड आफ्टर द डिस्कवरर Nissl. ओके, आफ्टर द डिस्कवरर whose name is Nissl. So now again इसी डायग्राम पे आते हैं. एक्सॉन जो है मैंने आपको बताया वो एक्सोलेमा से सराउंडेड रहेगा. एक्सोलेमा will be surrounded by something that is called myelin sheath. ये जो आप देख रहे हो ना, ये myelin sheath है एक्सॉन पे.
This myelin sheath is again surrounded by neurilemma. I will show you the diagram. देखो, see this diagram now over here. Okay, see the axon. हमने ये पार्ट तो देख लिया है ऊपर का. Now you see the axon. Axon will be having axoplasm over here. Axolemma will be the limiting membrane of the axon. ये axolemma हो गई. ये हो गया myelin sheath and this is neurilemma. Myelin sheath, neurilemma. Schwann cell is the cell which secretes this myelin sheath and neurilemma. तो ये आपको याद रखना है. Schwann cells will be present in the axonal part. यहाँ नहीं रहेंगे. Myelin sheath will be present in the axonal part. Nissls granules present in this part, in the body part, in the dendritic part, not in the axon. Okay? तो देखो यहाँ पे. Let us see. This is the nerve fiber. This is the axon. Axon will be surrounded by myelin sheath, which is a fatty layer. Now, because of this fatty layer, ये इसको white appearance देता है. Okay, so this is also called white fibers या white matter बनाते हैं ये brain में. The myelinated nerve fibers. अब ये myelin sheath है. Myelin sheath के बाहर रहता है neurilemma. So myelin sheath and neurilemma, they both are formed by the Schwann cell. These are coverings of the axon. अब जहाँ पे ये myelin sheath absent रहेगी, जहाँ पे ये myelin sheath absent रहेगी, on the axon थोड़ी थोड़ी जगह पे myelin sheath present नहीं रहती है. These are the places जहाँ पे axon is in direct communication with the extracellular fluid or extracellular environment. यहाँ पे myelin sheath present नहीं है. Okay? तो हम बोलते हैं myelin sheath जो है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है. ये इंसुलेट करती है एक्सॉन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. समझ में आ रहा है? ये डायग्राम बहुत सिंपल है. जस्ट मेक अ रॉड, मेक दीज थिंग, बीच बीच में जगह छोड़ दो. जहाँ पे छूटा हुआ है इट विल बी इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द एक्सटर्नल. जहाँ पे शीट प्रेजेंट है इट विल बी इंसुलेटेड. अंदर बाहर कुछ आ नहीं सकेंगे आयन मॉलिक्यूल्स ये जगह पे. So this is myelin sheath. Okay, and these places where the myelin sheath is not there, they are called nodes of Ranvier. Nodes of Ranvier. These are the places where myelin sheath is absent. अब एक न्यूरॉन ये myelinated हो सकता है या नॉन myelinated हो सकता है. Means myelin sheath is present or myelin sheath is completely absent. But when myelin sheath is present, these nodes of Ranvier are there. Okay, these are the places, again MCQs. Nodes are the places where the axon is in direct communication with the extracellular fluid, and myelin sheath acts as an insulator. समझ में आ रहा है? Okay, so coming back over here on this basic diagram in your NCERT textbook. See if you can appreciate the axon. If you can see, वहाँ पे अपने लिए याद रखो axon के बाहर axolemma रहेगी, which will be the limiting membrane. उसके बाहर myelin sheath रहेगी, which is this, and myelin sheath will be surrounded by the neurilemma. And ये Schwann cell का nucleus रहेगा. Schwann cell will be the cell which is producing this myelin sheath. Okay? And these places will be the nodes of Ranvier, where the myelin sheath is absent. ये places पे axon will be in direct communication with the extracellular fluid, extracellular environment. Axon कैसे terminate करता है? Axon फिर से terminate करता है branches में. These branches of the axon are called telodendrons. ठीक है? And axon का जो सबसे terminal part होता है, it is a bulb-like structure. This bulb-like structure is called synaptic knob. Synaptic knob.
See here. I want to show you a synaptic knob, okay? Let me just see which picture shows it properly. So at the synaptic knob, axon is going to communicate with the adjacent dendron या दूसरे न्यूरॉन के साथ communicate करेगा. Synapse will be a place जहाँ पे एक न्यूरॉन का axon is communicating with दूसरे न्यूरॉन का dendron या dendrites. Okay, so synapse you should remember. ये न्यूरॉन्स जो हैं, जो डेंड्राइट्स रहते हैं, वो सेंसरी रिसेप्शन परसीव करते हैं. These dendrites they take the sensory reception from the sensory organ. वो इम्पल्स यहाँ से ट्रैवल होता है और एक्सॉन के थ्रू, these synaptic bulbs के थ्रू जाता है दूसरे न्यूरॉन को. Have you seen a relay race? एक पार्टिसिपेंट डंडी लेके भागता है, comes back to the other participant, passes that parcel to the other. वो लेके भागता है, वो पार्सल पास करता है तीसरे को. It's like a relay race that the neurons work. ठीक है, ये पास करेंगे एक दूसरे को इम्पल्स. ओके, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूरॉन्स इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स. ये कंडक्ट कर रहे हैं, यहां से लेके डायरेक्ट करते हैं सीधा ब्रेन को. कहां से मिली ये इम्पल्स कंडक्ट करने के लिए? सेंस ऑर्गन ने स्टिम्युलेट किया. ओके, सेंस ऑर्गन ने स्टिम्युलेट किया. अगर गर्म पानी में आपका हाथ गया, इमीडिएटली पानी में से हाथ वापस आता है. You don't even think about a second. If you don't know that the water in the bucket is very hot, आपने हाथ डाला, हाथ बाहर आता है. किसने सेंस किया? स्किन ने सेंस किया टेम्परेचर. ओके, मैं जॉगिंग कर रही हूँ पार्क में, मेरे पीछे एक डॉग आ जाता है भागता हुआ, बार्क करता हुआ, भौंकता हुआ. I start running, I get frightened. Why? मेरी आईज ने देखा a dog is running behind me, barking behind me. I got frightened. बॉडी ने क्या इमीडिएट एक्शन किया? भागना है. सो मुझे ये इम्पल्स मिला, मुझे ये स्टिम्युलेशन मिला बाहर से. सो जब ये स्टिमुलस मिलेगा, न्यूरॉन एक्साइट हो जाता है कि कुछ करना है, अब रिस्पॉन्ड करना है वो स्टिमुलस को. ओके, सो ये स्टिमुलस डेंड्राइट को मिलती है सेंसरी ऑर्गन से एंड वो पास ऑन करता है एक्सॉन के थ्रू दूसरे न्यूरॉन्स को विच गो टू द ब्रेन. एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द नर्व सेल वैसे तो रेस्टिंग फेज में रहता है, बट जैसे ही स्टिमुलस मिली, इट एक्ट्स, इट गेट्स एक्साइटेड. सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी. एक्साइट हो जाना ऑन द रिसीवल ऑफ द स्टिमुलस एंड टू वर्क अकॉर्डिंगली कि क्या करना है. ऑलराइट, तो ये होता है जब गर्म पानी में हाथ जाता है, जब हम किसी डॉग को देखते हैं बात कर रहा है. वी आर ऑल सिटिंग इन अ क्लासरूम एंड सडनली सम फाउल ओडर कम्स, सम फाउल स्मेल कम्स. सब क्या करते हैं? अपना नाक बंद कर देते हैं. किसने स्मेल किया? नोज ने. सेंसरी ऑर्गन से स्टिमुलस गया ब्रेन के पास. इमीडिएटली यू ट्राई टू कवर योर नोज, या हम विंडोज और डोर्स बंद करते हैं उठ के. सो ऑल दीज आर गेटिंग स्टिमुलस. ठीक है, ये बाहर से स्टिमुलस मिलती है, न्यूरॉन्स एक्साइट हो जाते हैं और न्यूरॉन्स रिस्पॉन्ड करते हैं उस पे. सो डेंड्राइट्स आर द प्लेसेस जहां ये सेंसरी स्टिमुलस रिसीव होगी एंड इट विल गो फ्रॉम हियर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, सेंसरी ऑर्गन से डेंड्राइट से एक्सॉन एंड फ्रॉम द एक्सॉन टू द एडजेसेंट न्यूरॉन. ये ऐसे पास होती है. नाउ देयर आर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन द नर्वस सिस्टम. ऐसा जरूरी नहीं है कि एक स्टिमुलस जो है वो एक ही दूसरे डेंड्रॉन को, मतलब ये एक एक्सॉन एक ही दूसरे डेंड्राइट को देगा स्टिमुलस, ऐसा जरूरी नहीं है. डिपेंडिंग ऑन क्या एक्शन लेना है, क्या सेंस ऑर्गन्स है. अभी आप देख भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो. इफ यू आर एट होम, यू आर ईटिंग समथिंग ऑल्सो, सो यू आर गेटिंग दैट टेस्ट सेंसेशन ऑल्सो. सो मल्टीपल न्यूरॉन्स आर वर्किंग टूगेदर, साथ में काम कर रहे हैं. Okay, and एक neuron can give signals to multiple neurons together to perform multiple bodily functions. ये place जहां पे axon के endings dendrite से मिलते हैं is called a synapse. That is why axon के जो ends हैं वो synaptic knobs होते हैं, bulb-like structures होते हैं, वो आपको याद रखने हैं. These are the synaptic knobs.
और बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब जो स्टिमुलस सेंसरी ऑर्गन से गई, स्टिमुलस मिला, एक्साइट हुआ एंड कंडक्ट हुई, वो इम्पल्स जनरेट हुई, कंडक्ट हुई। आपने बैटरीज देखी है घर पे, जो हम रिमोट में डालते हैं टीवी के, या हम टॉयज में डालते हैं बच्चों के। दोज बैटरीज आर ऑल्सो चार्ज सेल्स जैसे न्यूरॉन्स होते हैं, बट जब तक हम उनको प्रॉपरली कनेक्ट नहीं करते हैं टू अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव सोर्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चालू नहीं होता है, कंडक्शन चालू नहीं होता है। न्यूरॉन्स का भी ऐसा ही है, जब तक स्टिमुलस नहीं मिलेगा दे बी एट रेस्ट, बट वंस स्टिमुलस इज गिवन दे गेट एक्साइटेड एंड वो इम्पल्स कंडक्ट करेंगे एंड दे आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दैट स्टिमुलस। तो सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन के पास जो न्यूरॉन लेके जाता है सेंसेशन, उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन या अफेक्टर न्यूरॉन। ए फॉर अफेक्टर, ब्रेन के पास आने वाला स्टिमुलस। ब्रेन से जो वापस मसल के पास रिस्पॉन्स लेके जाता है उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन या इफेक्टर न्यूरॉन, बिकॉज इट इज गोइंग टू शो द इफेक्ट ऑफ दैट स्टिमुलस। तो ब्रेन की तरफ आने वाला स्टिमुलस सेंसरी न्यूरॉन लेके आएगा, एफरेंट न्यूरॉन लेके आएगा। ब्रेन से वो स्टिमुलस को प्रोसेसिंग करके वापस लेके आएगा मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन, विच इज गोइंग टू शो द इफेक्ट ऑन द मसल। वेर एज ब्रेन में जो ये स्टिमुलस को प्रोसेस करेंगे वो होंगे इंटर न्यूरॉन्स। These will be mixed kind of neurons. तो समझ में आ रहा है, हम अगर एक रिले रेस खेल रहे हैं तो सेंसरी न्यूरॉन रहेंगे जो जा रहे हैं सेंस ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन जा रहा है। यह है सेंट्रल स्टेशन, दैट इज द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे ये मिक्स हो रहा है, इसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि क्या करना है ये स्टिमुलस का, एंड जो भी करना है वो रिस्पॉन्स जाएगा वापस मोटर न्यूरॉन से या इफरेंट न्यूरॉन से। ये सिंपल डायग्राम बना लो। सेंसरी मतलब एफरेंट, ब्रेन के पास आने वाला स्टिमुलस, ब्रेन से जाने वाला स्टिमुलस जाएगा मोटर न्यूरॉन से, विच इज इफरेंट। Efferent means E. E means it is going to show the effect of that stimulus. गर्म पानी में हाथ गया, सेंस किया, सेंसरी न्यूरॉन गए, इमीडिएटली हाथ बाहर निकला, मोटर न्यूरॉन, it is the effect of that stimulus. And interneurons are going to do the processing of the stimulus inside the brain. Okay? जब ये स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, अगर पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट्स होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाते हैं ये ब्रेन को। ओके, तो जब ये स्पाइनल कॉर्ड इज इन द सेंटर ऑफ आवर बॉडी, एक पोर्शन है वेंट्रल सरफेस विच इज द फ्रंट सरफेस, दूसरा पोर्शन इज द डॉर्सल सरफेस विच इज द बैक साइड सरफेस। तो सेंसरी वाले हमेशा डॉर्सल रूट से जाते हैं, मतलब कि पीछे से। ये वाले हमेशा वेंट्रल रूट से आते हैं, मतलब कि सामने से। So you have to remember, with the sensory neuron dorsal root, with the motor neuron the ventral root. ठीक है, important MCQs आते हैं। अगर आपने ये एक सिंपल डायग्राम बना दिया आपको समझ में आ जाएगा ये। So this is what I was speaking of, कि सिग्नल जो है वो हमेशा कंडक्शन स्टार्ट होगा सेंसरी स्टिमुलस से, मतलब सेंसरी ऑर्गन से। जो आएगा डेंड्राइट रिसीव करेंगे थ्रू द सेल बॉडी, ट्रैवल होगा एक्सॉन से। जब वो ट्रैवल हो रहा है एक्सॉन से, उसको हम बोलेंगे कंडक्शन। ओके, रिसीविंग द स्टिमुलस एंड गेटिंग एक्साइटेड, एक पोटेंशियल डेवलप करना उसको कंडक्ट करने के लिए। दिस ऑल is going to be done by the axon, and then it is going to be passed on to a second neuron in this line. एक relay race है। ओके, ये सिनेप्टिक बल्ब्स रहेंगे यहाँ पे, जहाँ पे सिनेप्स बनेगा। सिनेप्स इज द प्लेस जहाँ पे एक एक्सॉन, न्यूरॉन का एक एक्सॉन विल बी कंबाइनिंग विद अ डिफरेंट न्यूरॉन उसके डेंड्राइट्स के साथ। So place where axon of one neuron and dendrites of the other neuron combine will form a synapse,
समझ में आ रहे हैं ये डायग्राम सब? अब यहाँ से अगर ये ताला खोलना है तो ये सिनैप्स है, ये एक्सॉन है एक न्यूरॉन का, ये सेंडिंग न्यूरॉन है, यहाँ से मिला, यहाँ से फ्लूइड के थ्रू पास होगा और आएगा रिसीविंग न्यूरॉन को। तो दैट इज हाउ एक कंडक्शन होगा, एक इम्पल्स जनरेट होके कंडक्ट होगी और सीएनएस के पास जाएगी। ये सब काम करते हैं न्यूरॉन्स। अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिनैप्स। तो अब अगर मुझे रिले रेस प्लेन चल के खेलनी है या फास्ट चल के खेलनी है एक स्ट्रेट इस पे, तो मुझे टाइम लगेगा। सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर मुझे ऐसे जाना है तो आई एम गोइंग टू टेक टाइम। पर जहां ये माइलिनेटेड रहते हैं, माइलिन शीट पे तो इंसुलेटेड है ये, बट यहां से लेके कंडक्शन सीधा जंप करता है। अब ये रिले रेस इज लाइक अ हर्डल रेस, जहां हर्डल्स पड़े रहते हैं, तो हर्डल से थोड़ा पहले हम जंप करना चालू कर देते हैं, दूसरे हर्डल से जंप करना, सेम डिस्टेंस जल्दी कवर होता है। दिस इज कॉल्ड फास्टर कंडक्शन इन अ माइलिनेटेड नर्व फाइबर, जिसको हम जंपिंग कंडक्शन भी बोलते हैं, बिकॉज द इम्पल्स इज जंपिंग फ्रॉम वन नोड टू द अदर। इसको हम saltatory कंडक्शन भी बोलते हैं। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज वर्ड्स फॉर MCQs. In a myelinated nerve fiber, the conduction of impulse will be faster. There will be saltatory conduction. All right, you have to correlate it with a hurdle race. न्यूरॉन्स का फंक्शन आपको कोरिलेट करना है रिले रेस से। That is how myelinated nerve fibers में conduction हमेशा faster रहेगा। Alright, so now you understand what dendrites are, you understand what an axon is. अब ये डायग्राम आपने ऑक्टोपस देखा है, इससे कोरिलेट होता है, the various tentacles of an octopus. और ये डायग्राम मैं बनाती हूँ अपने हाथ से। See, this is the cell body. These are the dendrites. They are short branches of the cell body. This is the cell body. These are the dendrites. ये है axon and my elbow becomes the synaptic nerve, जो bulb like structure था axon के ending में। जब ये synaptic bulb पे दूसरा न्यूरॉन आके लग जाएगा, see this is a second neuron now. ये dendrites हैं, फिर से axon से join हुए, alright? तो ये प्लेस जहां पे एक न्यूरॉन का एक्सॉन कंबाइन करता है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से फॉर्म सिनैप्स। तो आप ये डायग्राम अपने हाथ के डायग्राम से भी याद रख सकते हो। इनफैक्ट यू कैन ड्रॉ इट लाइक दैट। पाम बना दो, 5 ब्रांचेस बना दो, दे बिकम द डेंड्राइट। ड्रॉ दिस वन बिकम्स दिस एक्सॉन। रिस्ट जो है वो एक्सॉन हिलॉक बन जाएगी। ठीक है, निसल्स ग्रैन्यूल्स हमने डिस्कस किए हैं, सेंट्रियोल्स नहीं रहेंगे, ये रीजनरेट नहीं कर सकेंगे। स्टिमुलस मिलेगी तो एक्साइट होंगे, एक्साइट होंगे तो एक पोटेंशियल डेवलप करेंगे जो कंडक्ट होगा। तो ये जो ट्रांसफर करना है एक न्यूरॉन से दूसरी जगह दूसरे न्यूरॉन को टू गो टू द ब्रेन, इसको बोलेंगे कंडक्शन। सो ऑल दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये टर्म्स आपको समझने चाहिए। नाउ एक्सॉन विल बी हैविंग द myelin sheath and the neurilemma. The Schwann cells will be the cells which will be secreting these. ये डायग्राम में समझेगा अच्छे से। Myelin sheath will be an insulator जो एक्सॉन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कवर करता है। At places where it is not there, उन प्लेसेस को बोलते हैं nodes of Ranvier. इनमें saltatory कंडक्शन होता है या फास्टर कंडक्शन होता है, हर्डल रेस से इसको कंपेयर करना है। ऑलराइट, सिनैप्स क्या होता है हमने डिस्कस किया है। सी दिस, ओके, एंड इट कैन बी कम्युनिकेटिंग विथ मल्टीपल न्यूरॉन्स एट अ टाइम। इट इज नॉट नेसेसरी कि एक न्यूरॉन एक से ही कम्युनिकेट करेगा। वी डू मल्टीपल फंक्शंस एट अ टाइम। तो इनपुट यहां से होगा और ट्रांसफर होगा, कंडक्ट होगा दूसरे न्यूरॉन को। तो सेंसरी ऑर्गन से हमने ये चेन बनाया था। द सेंसरी न्यूरॉन विल ऑलवेज गो थ्रू द डोर्सल पार्ट, dorsal root of spinal cord. The motor neuron will always go through the ventral root of spinal cord. Very important MCQ. And brain में या spinal cord में जो इन दोनों के communicating neurons होंगे वो होते हैं interneurons या mixed neurons.
अब एक न्यूरॉन में अगर सेल बॉडी से बहुत सारे डेंड्राइट्स निकल रहे हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, बिकॉज मल्टीपल पोल्स आर ओपनिंग ऑन द सेल बॉडी। तो बहुत सारे डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन। बायपोलर रहेगा जब सेल बॉडी से सिर्फ एक एक्सटेंशन निकलेगा फॉर द डेंड्राइट एंड एक फॉर द एक्सॉन। एंड यूनिपोलर रहेगा जब सेल बॉडी से एक प्रोसेस निकल के डिवाइड करेगा डेंड्राइट को और एक्सॉन को। मींस इन सारे न्यूरॉन्स में एक्सॉन एक ही है। रिमेंबर, एक्सॉन एक ही है, डेंड्राइट कितने जगह पे खुल रहे हैं। अगर बायपोलर है तो वो ऐसे होगा, मल्टीपोलर है तो वो मल्टीपल पोल्स पे खुलेगा, एंड यूनिपोलर है तो एक सिंगल एक्सटेंशन से आएगा। दिस इज ऑल्सो द टाइप वी कैन क्लासिफाई न्यूरॉन्स इनटू। So now coming to the nervous tissue from the chapter from the state board textbook, ये जो points mark किए हैं, अब ये सारे points आपको समझ में आने चाहिए। Just I am highlighting, just I am reading these points. You will see that you have got it from the previous explanation. If not, go back and read it again. Go back and listen to it again. So neurons and neuroglia, nervous system. Okay, neurons में न्यूरोग्लिया विल बी नॉन नर्वस सेल्स, ये सपोर्टिंग सेल्स रहेंगे नर्वस टिश्यू को, न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स आर नॉट केपेबल ऑफ रीजनरेशन, यू नो, बट द न्यूरोग्लिया आर केपेबल ऑफ रीजनरेशन एंड डिविजन। इसीलिए ब्रेन ट्यूमर में न्यूरॉन्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, न्यूरोग्लिया का मल्टीप्लिकेशन होता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बिकॉज ब्रेन में नर्वस टिश्यू में सिर्फ न्यूरोग्लिया डिवाइड कर सकते हैं, न्यूरॉन्स नहीं डिवाइड कर सकते हैं। Okay, because of lack of centriole, mark कर लो, important MCQ. Neurons is an impulse generation and impulse conducting unit. Stimulus मिलने पे ये generate करता है potential और उसको conduct करता है, external stimulus पे respond करता है, conduct करता है इस impulse को from the dendrite to the axon. The conduction is always going to be that way. Axon कभी sensory organ से stimulus नहीं लेगा. It is always the dendrite which is going to take. Axon is going to bring it back to the muscle. Okay, so sensory neuron में dendrites will be near the sense organ and the axon will go towards the brain. Motor neuron में brain से dendrites निकलेंगे और axon आएगा effector organ के पास। All right, next, it is the largest cell in the body. आपने इतने सारे cells देखे हैं in the chapter cell now. इतना बड़े processes सिर्फ न्यूरॉन में रहते हैं। इट इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी एंड इट इज प्रेजेंट इन बिलियंस इन द ब्रेन। साइटोन और सेल बॉडी यू नो, न्यूरोप्लाज्म नाउ यू नो, निसल्स ग्रैन्यूल्स यू नो, डेंड्रॉन यू नो, एक्सॉन्स यू नो, ये शॉर्ट ब्रांच रहेंगे। यू नो दैट एक्सॉन सिंगल रहेगा, इलोंगेटेड रहेगा, सिलिंड्रिकल प्रोसेस रहेगा। एक्सोलेमा आपको पता है, माइलिन शीथ समझ गई, न्यूरीलेमा समझ गई, श्वान सेल आई होप आपको समझे हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर समझे हैं, टीलोडेंड्रॉन समझा है। ओके, तो बेस्ड ऑन द फंक्शन हमने इनको क्लासिफाई किया था। एफरेंट न्यूरॉन जो है ब्रेन के पास आने वाली स्टिमुलस, ए फॉर एफरेंट, ए फॉर आने वाली सेंसरी ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डॉर्सल रूट से जाएगी हमेशा ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इफेक्टर में सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से वापस जाने वाला, इफेक्ट दिखाने वाला, ई फॉर एफरेंट, ई फॉर इफेक्ट, जो इफेक्ट दिखाएगा ऑर्गन को, इफेक्टर ऑर्गन को। ऑलराइट, ये वेंट्रल रूट से जाएगा हमेशा। एंड इंटरन्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन, दीज आर गोइंग टू डू द वर्क ऑफ प्रोसेसिंग, इंटीग्रेशन ऑफ द स्टिमुलस रिसीव एंड दे आर गोइंग टू गिव एन अप्रोप्रिएट मोटर रिस्पॉन्स। अगर हाथ पानी में गया है तो हाथ ही निकलता है, पैर को हम नहीं हिलाते हैं। ओके, सो दैट इज द वे अप्रोप्रिएट मोटर रिस्पॉन्स देंगे, प्रॉपरली एनालाइज करके स्टिमुलस को। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट पे माइलिनेटेड रहेंगे या नॉन माइलिनेटेड रहेंगे। अब माइलिनेटेड है तो वो व्हाइट रहेंगे कलर में, बिकॉज इट्स अ फैटी शीट, इट्स एन इंसुलेटर, सो उसको व्हाइट अपीयरेंस देगा। श्वान सेल्स के बारे में मैंने आपको बताया है। एंड द शीट इज नॉट कंटिन्यूअस थ्रू आउट द एक्सॉन, तो ये जो इंटरप्टेड गैप्स रहते हैं, दीज आर द नोड्स ऑफ रैनवियर। बिकॉज ऑफ दिस कंडक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होता है, कंडक्शन जंप करता है, इट इज कॉल्ड सैल्टेटरी कंडक्शन। ओके,
तो ये आपको याद रखना है। एंड जो माइलिन शीट जहाँ पे एब्सेंट रहता है उनका अपीयरेंस ग्रे इन कलर रहता है, तो वहीं से हमको व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर मिलता है। इसको देखेंगे नर्वस टिश्यू में डिटेल में, नर्वस सिस्टम में, ओके, व्हेन वी विल बी स्टडीइंग अबाउट हाउ दिस टिश्यू वर्क्स। तो ये स्लोअर रहेगा एज कंपेयर टू अ माइलिनेटेड नर्व फाइबर, इसमें कंडक्शन स्लो रहेगा। एंड सिनैप्स मैंने आपको बताया है क्या होता है। नाउ रीड, highlight these points and read the chapter now. Go back and see the diagrams जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ये सारे points explain करने के लिए। And based on the number of processes, unipolar होंगे, bipolar होंगे और multipolar होंगे। Majority में multipolar है हमारे body में। So अब neurons तो हो गए from this nervous tissue, बचे neuroglial cells। Okay, we are going to see neuroglial cells कैसे सपोर्ट करते हैं ये नर्वस टिश्यू को, क्या करते हैं इनके लिए, क्या करते हैं न्यूरॉन्स के लिए। तो न्यूरोग्लिया आर ग्लू लाइक सेल्स, ये न्यूरॉन्स को चिपक के रहते हैं, ग्लू लाइक सेल्स इन द नर्वस टिश्यू। दे आर मोर इन नंबर देन द न्यूरॉन्स। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसका टाइप्स है माइक्रोग्लिया। दीज आर फैगोसाइटिक सेल्स, ये इनगल्फ करेंगे किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी वायरस को, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को जो न्यूरॉन में आया है। दे आर नॉट गोइंग टू लेट इट डिस्टर्ब द फंक्शनिंग ऑफ द न्यूरॉन, दे आर गोइंग टू डू द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। एंड ये एंटीजन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं इस टिश्यू के, दैट इज कॉल्ड एपीसी। वी विल स्पीक ऑफ दिस इन डिटेल बाद में, ओके। एस्ट्रोग्लिया सेकेंड, these are star like cells, they hold the blood vessel and the neurons together. ब्लड वेसल और न्यूरॉन को साथ में पकड़ के रखता है, so that the neuron is getting the nutrients from the blood. They form the blood brain barrier. It maintains the ionic and chemical environment around the neuron. Next is oligodendroglia. These secrete the myelin sheath. तो अब जो Schwann cells हम बोल रहे थे ना, वो oligodendrocytes हैं या oligodendroglia है। Very important MCQ again. आपको याद रखना है कि माइक्रोग्लिया फैगोसाइटोसिस करेगा, एस्ट्रोग्लिया आर गोइंग टू फॉर्म द ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड वेसल्स को अटैच करके रखेगा न्यूरॉन्स को, सो दैट न्यूट्रिएंट्स और आयंस और केमिकल एनवायरनमेंट मेंटेन रहे। Oligodendrocytes are going to secrete the myelin sheath and the ependymal cells. These are going to produce the cerebrospinal fluid, which is a very important fluid in the blood, in the brain. तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करेगा, उनकी मूवमेंट भी कराएगा। मूवमेंट कराने के लिए हमने बात किया था कि सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे, बिकॉज वी हैव टू डू द मूवमेंट ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम में बात की थी कि इट विल बी प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। So they will be present in the ventricles of the brain and spinal cord. These ventricles are fluid-filled cavities in the brain and spinal cord. We will see about this in detail in nervous coordination. But for now, you have to remember the 4 types of neuroglial cells and their function. देखो इधर डायग्राम में माइक्रोग्लिया को अलग बना दिया है, फैगोसाइटोसिस कर रहा है। ये ब्लड वेसल है, ये एस्ट्रोसाइट है, ब्लड वेसल को अटैच कर रहा है न्यूरॉन से। यहाँ के न्यूट्रिएंट्स यहाँ जाने चाहिए, यहाँ के आयंस और ये सब मेंटेन रहना चाहिए। एंड ये श्वान सेल्स जो हैं, जो माइलिन शीट बना रहे थे, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये भी ड्रॉ कर लो रफ में डायग्राम। ओके, सी हियर एस्ट्रोसाइट्स, इनको रेड कलर का बना दिया है सो दैट ब्लड से याद रहे, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाएंगे। दीज आर द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओके, अब 2 न्यूरॉन्स को 2 स्टेशंस के जैसा भी कंसिडर करते हैं। ऑलराइट, दिस इज औरंगाबाद, दिस इज जालना। ये बीच की जो रेलवे ट्रैक्ट है वो एक्सॉन है, so that way is also it can be considered. The body of the neuron is also called star-shaped cyton because of the extensions जो एक स्टार का शेप बना सकते हैं. It is also compared to an octopus. I remember it by the hand. ये हो गई बॉडी और ये हो गए डेंड्राइट्स, ये हो गया एक्सॉन, ये हो गया सिनेप्टिक बल्ब. यहाँ पे सिनेप्स बनेगा, ये दूसरा न्यूरॉन है, इसके डेंड्राइट्स ने आके यहाँ पे कैच किया. Okay, so to revise and summarize, now I want you to draw. आप नर्वस न्यूरॉन को ड्रॉ करो, लिखो यहाँ पे न्यूरॉन. From the neuron, we have classified it
ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, क्या फंक्शन है न्यूरॉन का, उसके बेसिस पे हमने 3 टाइप्स में उसको क्लासिफाई किया है. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कितने प्रोसेसेस हैं, वी हैव क्लासिफाइड इट इनटू यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर. लिख लो यहाँ पे. डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन हमने क्लासिफाई किया है सेंसरी, मोटर and interneurons या mixed neurons which will have both the functions. Depending on the presence or absence of myelin sheath, we have divided them into myelinated and non-myelinated. ये तो हुआ न्यूरॉन के लिए. बना लो ये चार्ट. And all these things you should understand on this flow chart. Okay. Now if I want to make it for a neuroglia, न्यूरोग्लिया में आपको सिर्फ 4 टाइप के सेल्स याद रखने हैं. न्यूरोग्लिया, you have to remember the 4 type of cells. One is doing the function of phagocytosis. Second is doing the function of maintaining the blood-brain barrier, maintaining the ions, the chemical environment, the nutrients inside the neuron. Third is doing the production of myelin sheath, that is the oligodendrocytes. And fourth are the ependymal cells, which are producing the cerebrospinal fluid. ये लिख लो 1, 2, 3, 4 में. That is how you have to remember about the nervous tissue in detail. Alright, I hope this is very clear to you. Please go back and listen the lecture again जहाँ पे आपको नहीं समझा है. ये concept clear होना जरूरी है. Call me back, message me for any doubts you have. Alright, I will see you with the next video very soon. Bye bye.